ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਗੋਇਲਾ IAS। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੀ PPSC HDO ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫਿਸਰ ਦੀ ਜੋ ਵੈਕੈਂਸੀ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਅਸੀਂ ਡੇਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਕੁਐਸਚਨਸ ਅ ਡੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦਾ ਅੱਜ ਪਾਰਟ 8 ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ 5 ਡਾਈਵਰਸਿਫਾਈਡ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ फ्रूट साइंस होवे, चाहे वो वेजिटेबल होवे, चाहे मैडिसिनल है, चाहे पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस है। हर एक टॉपिक दे विचों एक क्वेश्चन तुहाडे नाल डेली डिस्कस हो रहा है। टोटल साडे कोल 5 क्वेश्चंस डाइवर्सिफाइड टॉपिक्स दे कवर हो रहे हैं। तो तुसीं इस सीरीज़ नूं जरूर देखना रेगुलरली। इहदे नाल की होएगा तुहाडे डाइवर्सिफाइड MCQs दी डेली प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि इहदे विच वक्रे वक्रे टॉपिक्स नूं असीं डेली पिक करते हैं। तो हर एक MCQ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ 8 ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 1 ਹੈ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਪੜੋਗੇ, ਅ ਡ੍ਰਿਪ ਲੇਟਰਲ ਹੈਜ਼ ਅ ਐਮੀਟਰ। ਡ੍ਰਿਪ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡ੍ਰਿਪ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਫ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਐਮੀਟਰਸ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਐਮੀਟਰਸ। ਔਰ ਐਮੀਟਰਸ ਐਂਡ ਡ੍ਰਿਪ ਲੇਟਰਲ ਲਾਈਨਸ ਇਹ ਤੋਂ ਕਨਵੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਵਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਡ੍ਰਿਪ ਲੇਟਰਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈ? ਐਮੀਟਰਸ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਔਰ ਐਮੀਟਰਸ ਦਾ ਡਿਸਚਾਰਜ ਰੇਟ ਗਿਵਨ ਹੈ। ਡਿਸਚਾਰਜ ਰੇਟ ਕਿੰਨਾ ਗਿਵਨ ਹੈ? 4 ਲੀਟਰਸ ਪਰ ਹੈਕਟੇਅਰ। ਐਂਡ ਦੋ ਲੇਟਰਲਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੇਸਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 0.5 ਮੀਟਰਸ ਆਫ ਸਪੇਸਿੰਗ। ਔਰ ਜੋ ਲੇਟਰਲ ਲੈਂਥ ਹੈ ਉਹ 40 ਮੀਟਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕੀਤਾ, ਰਫਲੀ ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਪੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਡ੍ਰਿਪ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੇਨ ਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਮੇਨ ਲਾਈਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਫਰਦਰ ਦੋ ਲੇਟਰਲ ਲਾਈਨਸ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦੋ ਲੇਟਰਲ ਲਾਈਨਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਥ ਹੈ, ਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 40 ਮੀਟਰਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਾਲੀ ਸਪੇਸਿੰਗ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਜੋ ਦੋ ਲੇਟਰਲ ਲਾਈਨ ਹੈ 1 ਐਂਡ 2, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਰ ਮੇਨ ਲਾਈਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਲੇਟਰਲ ਲਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਾਲੀ ਜੋ ਸਪੇਸਿੰਗ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਗਿਵਨ ਹੈ? 0.5 ਮੀਟਰ ਸਪੇਸਿੰਗ। फर्दर साडा क्वेश्चन क्या है कि जेड़ा साडा लेटरल लेंथ है वो 40 मीटर्स दी है, दोनों के विचकार वाली स्पेसिंग 0.5 मीटर। ऐसे फाइंड करना है द टोटल डिस्चार्ज फ्रॉम 1 लीटर, मतलब एक लेटरल दे विचों कितना टोटल डिस्चार्ज हो रहा है। हुण डिस्चार्ज कित्थों हो रहा है? इत्थे साडे लगे हुए हैं एमिटर्स। एमिटर्स क्या कर रहे हैं? रूट जोन तक वाटर नूं सप्लाई कर रहे हैं। तो इत्थे जेड़े एमिटर्स लगे हुए हैं ओदा डिस्चार्ज रेट तुहानूं गिवन है 4 लीटर्स पर आवर, यानी कि एक घंटे दे विच 4 लीटर्स डिस्चार्ज हो रहा है। असी फाइंड करना है अगर इस पूरी लेटरल दी लेंथ 40 मीटर्स है तो टोटल डिस्चार्ज रेट की हो सकता है। सो साडे ऑप्शंस हैं 160 लीटर्स पर आवर, 240 लीटर्स पर आवर, 320 लीटर्स पर आवर, या फिर ऑप्शन 4th की है 400 लीटर्स पर आवर। तो तुसी पहले क्वेश्चन नूं रीड आउट करना है, फिर उस तो बाद उहदे आंसर नूं देखना है। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਨਸਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਨਸਰ ਇਹਦਾ ਕਿਵੇਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗਿਵਨ ਸੀਗਾ ਕਿ 0.5 ਮੀਟਰਸ ਆਫ ਸਪੇਸਿੰਗ ਤੇ ਲੇਟਰਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਐਮੀਟਰਸ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੋਜ਼ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਹੀ, ਤੇ ਐਮੀਟਰ ਦੀ ਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 40। तो 40 दो लेटरल लाइंस है ना, तो 40 × 2 करांगे तो कितने आ जाएगी? 80 मीटर। बिकॉज हाफ मीटर मीन्स 2 मीटर्स आर देयर पर मीटर, क्योंकि स्पेसिंग कितनी है? 0.5 मीटर्स ऑफ स्पेसिंग है। 0.5 मीटर का मतलब क्या है? अद्धे मीटर की स्पेसिंग ते दो एमिटर्स लगे हुए हैं, तो दोनों का जो डिस्चार्ज रेट है वो कितना होएगा? लेंथ, दिस इज दी लेंथ नूं असीं मल्टीप्लाई कर दिता 2 दे नाल, क्योंकि दो एमिटर्स ने पर मीटर ते, तो साडा आंसर की आएगा? 80 मीटर। फर्दर असीं की फाइंड करना सीगा? डिस्चार्ज रेट। आपां की फाइंड करना सीगा? डिस्चार्ज रेट। हुण डिस्चार्ज रेट की होएगा? 80, जो कि एमिटर्स दा है, इंटू 4 क्या है इत्थे साडा? अगर असीं ऑप्शन नूं देखिए तो 4 लीटर की है साडा? डिस्चार्ज रेट है। सो 4 लीटर की है साडा? डिस्चार्ज रेट है।
सो 4 लीटर ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਲੈਂਥ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੋ ਕਿ क्या है 320 ਲੀਟਰਸ ਪਰ ਆਰ। ਦੇਖੋ ਕੁਐਸਚਨ क्या ਸੀਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮੇਨ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮੇਨ ਲਾਈਨ ਹੈ, इस मेन लाइन दे विचों 2 लेटरल लाइन्स लगियां हुई हैं। जो मेन लाइन है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 लेटरल्स निकल के आ रहे हैं, दोनों लेटरल्स ਦੀ स्पेसिंग ਸਾਨੂੰ गिवन ਸੀਗੀ that is 0.5 मीटर्स, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਥ ਹੈ ਉਹ ਵੀ गिवन ਸੀ ਸਾਨੂੰ 40 मीटर। ਅਸੀਂ फाइंड करना ਸੀਗਾ टोटल डिस्चार्ज रेट। ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ फाइंड होएगा, क्योंकि 0.5 मीटर स्पेसिंग है यानी कि 2 एमीटर्स लगे हुए हैं, अद्धे मीटर ते 1 एमीटर लग्या हुआ है, तो टोटल 1 मीटर दे विच 2 एमीटर्स लगे हुए हैं। हुण उन्हां दी लेंथ कितनी गिवन है 40 मीटर, यानी कि 40 मीटर 2 टाइम्स है, तो टोटल डिस्टेंस कितना होएगा 80 मीटर। बट क्वेश्चन की सीगा सानू डिस्चार्ज रेट पता करना है असी। सो डिस्चार्ज रेट असी किवें फाइंड करांगे, 80 मीटर्स जो कि साडी लेंथ है मल्टीप्लाई द डिस्चार्ज रेट जो कि 4 है। सो साडा आंसर कितना आएगा 320 लीटर्स पर आवर। सो इसी तरीके नाल तुसी एग्जाम विच भी इनू सॉल्व करना है। पहले रफली एक डायग्राम तुसी बना सकते हो जिहदे नाल तुहानू आइडिया जा हो जाएगा कि किवें क्वेश्चन नू सॉल्व करना है। सो नैक्सट मूविंग टू दी क्वेश्चन नंबर 2। अगर असी क्वेश्चन नंबर 2 की गल करिए तो साडे कोल की गिवन है, एक टमैटो दी नर्सरी है, नर्सरी प्रोडक्शन के रिलेटेड एक क्वेश्चन है। टमैटो की तुसी नर्सरी लगा रहे हो, उहदे विच रेज्ड बैड्स आर रैकमेंडेड मेनली बिकॉज द रीजन इज, टमैटो की तुसी नर्सरी लगा रहे हो तो उहदे विच रेज्ड बैड्स, हुण रेज्ड बैड्स तुहानू पता है ना, फ्लैट बैड तो सीधा हुंदा, रेज्ड बैड की कुछ एवें दी शेप हुंदी है, मतलब जमीन तो थोड़ा रेज्ड हुंदा है, उहदा नाम की हुंदा है रेज्ड बैड। हुण अगर असी रेज्ड बैड की गल कर रहे हैं तो इहदा मेजर पर्पस की हुंदा है, इंक्रीज द सीड साइज। फर्स्ट ऑप्शन की है, यू हैव इहदे नाल की होएगा सीड दा साइज इंक्रीज होएगा। दूसरा की है रिड्यूस द वाटर रिक्वायरमेंट बाय हाफ, क्या इहदे नाल वाटर की रिक्वायरमेंट घट होएगी। इंक्रीज द सॉयल सैलिनिटी फॉर बैटर जर्मीनेशन, ये तो वैसे भी नहीं हो सकता। सैलिनिटी किवें इंक्रीज हो जाएगी, सिर्फ और सिर्फ इंटरकल्चर ऑपरेशन करने दे नाल। लास्ट की है इंप्रूव द ड्रेनेज एंड रिड्यूस द डैम्पिंग ऑफ इंसीडेंट्स, मतलब ड्रेनेज नू इंप्रूव करने दे लई। सो साडा करैक्ट आंसर की हो सकता है, पहले तुसी क्वेश्चन नू पढ़ो, सोचो कि आंसर की हो सकता है, फर्दर असीं तुहाडे नाल करैक्ट आंसर नू डिस्कस करांगे। हुण जिहड़ी साडी फर्स्ट 3 ऑप्शनस है उन्हां नूं देखोगे तो ज़्यादा उन्हां दा कोई मीनिंग बन नहीं रहा। सीड साइज किवें इंक्रीज हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ रेज्ड बैड नाल। सीड दा एक बेस है ना साडा, उन्होंने जेनेटिकली मॉडिफाई किया जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ इंटरकल्चर ऑपरेशन के नाल नहीं। सो ये साडी ऑप्शन ऑटोमैटिकली एलिमिनेट होगी। नैक्सट क्या है, रिड्यूस द वाटर रिक्वायरमेंट बाय हाफ, दिस इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन बिकॉज रेज्ड बैड मतलब जमीन तो थोड़ा ऊंचा एक बैड क्रिएट कर दिता गया जिथे प्लांटिंग हो रही है, बट उहदे नाल की होएगा कि जिहड़ी जड़ा नूं ऑप्टिमम वाटर मिलेगा, वाटर लॉगिंग कंडीशंस नहीं आएंगियां, ड्रेनेज प्रॉपर होएगी तो डैम्पिंग ऑफ डिसीज, मतलब जो मेजर डिसीज है जो हो रही है, अगर जड़ खराब हो रही है एक्सेस वाटर के नाल, वो नहीं होएगा। सो साडा करेक्ट आंसर की है ऑप्शन नंबर डी की है, इट विल improve the drainage and reduce the chances of damping off। सो साडा करेक्ट आंसर की है डी ऑप्शन, जिसका मतलब क्या है, इहदे नाल जदों तुसी रेज्ड बैड बना दिंदे हो, क्योंकि नॉर्मली क्या होंदा फ्लैट बैड कुछ इवें दे साडे कोल, सपोज आ है साडा फ्लैट बैड, असी इत्थे इरीगेशन प्रोवाइड की, इरीगेशन सीधा सीधा रूट जोन तक जा रही है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ क्या होएगा कि अगर एक्सैस ਦੇ ਵਿੱਚ वाटर आ रहा है तो ਉੱਥੇ डिसीजेस होने के चांसेस ज़्यादा है। बट अगर ਆਪਾਂ रेज्ड बैड की गल करिए तो वो जमीन तो थोड़ा रेज्ड होंदा है ताकि रूट जोन तक ऑप्टिमम मॉइस्चर, सपोज ये प्लांट की रूट जोन है, रूट जोन तक ऑप्टिमम
ਮੋਇਸਚਰ ਕਨਵੇ ਹੋ ਜੇ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੇਜ਼ਡ ਬੈੱਡ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਸੀਂ ਰੇਨੀ ਸੀਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਟਰ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਰੂਟ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਥਰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। So third question is a commonly recommended practice to reduce the alternate bearing in mango is। So किस चीज़ की गल हो रही है? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ मैंगो की गल हो रही है। मैंगो ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ है bearing ਦਾ मतलब ਕੀ है? fruits ਦਾ ਲੱਗਣਾ। सो ਜਦੋਂ bearing ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ है कि bearing ਦੇ ਵਿੱਚ alternate bearing ਦਾ मतलब क्या है? एक साल fruiting हो रही है, next year नहीं हो रही, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ third year ਹੋ ਰਹੀ है। सो ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ gap ਆ ਰਿਹਾ है ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਕੈਮੀਕਲ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਅ ਕਾਮਨਲੀ ਰეკਮੈਂਡਡ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਟੂ ਰਿਡਿਊਸ ਦ ਚਾਂਸਸ ਆਫ ਅਲਟਰਨੇਟ ਬੀਅਰਿੰਗ ਇਨ ਮੈਂਗੋ। ਸੋ ਕਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨਸ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ। फर्स्ट क्या है? हैवी इरीगेशन ड्यूरिंग दी फ्लावरिंग, जो फ्लावरिंग स्टेज आ रही है उदो हैवी इरीगेशन प्रोवाइड करो। सेकंड क्या है? पैक्लोब्यूट्राजोल एप्लीकेशन प्लस रेगुलर प्रूनिंग एंड फ्लावरिंग। थर्ड की है कंप्लीट डीफोलिएशन एट द फ्रूट सेट। फोर्थ क्या है? इंक्रीज द नाइट्रोजन एट द फ्लावरिंग। सो देखो इन्हां सारी प्रैक्टिस दे विच असीं फ्रूट दी बीयरिंग नूं कंट्रोल करना है तो ऑटोमैटिकली सानूं एक कैमिकल चाहिदा है जो कि कित्थे गिवन है? ऑप्शन नंबर बी दे विच पैक्लोब्यूट्राजोल दी एप्लीकेशन गिवन है। सो यही साडा की है? करेक्ट आंसर है। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज कि जदों भी फ्रूट की बेयरिंग असीं मैंगो के केस दे विच इंप्रूव करनी है तो उत्थे असीं की करांगे? पैक्लोब्यूट्राजोल कैमिकल की एप्लीकेशन करांगे। प्लस असीं की करांगे? रेगुलर प्रूनिंग एंड फ्लावरिंग मैनेजमेंट, मतलब जिस टाइम ते फ्लावर्स आ रहे उस टाइम ते रेगुलर की करनी है? प्रूनिंग, मतलब जो डिसीज्ड ट्विग्स है, शूट्स है, उन्होंने नाल दी नाल रिमूव करते जाना है। सो अज दा जिहड़ा साडा फोर्थ क्वेश्चन है दैट इज रिलेटेड टू ग्रैनुलेशन इन सिट्रस। मतलब कि विच गल हो रही है सिट्रस फ्रूट्स, जिन्ने भी साडे खट्टे फ्रूट्स हुंदे आ, विटामिन सी एनरिच्ड फ्रूट्स हुंदे आ, सिट्रस फ्रूट्स, उन्हां दे विच ग्रैनुलेशन की है? एक तरह का फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है। इज मेनली एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। मतलब गल की हो रही है कि जेडे साडे सिट्रस फ्रूट्स ने उन्हां दे विच एक फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसका नाम की है? ग्रैनुलेशन फ्रूट दे विच आंदी है, यानी कि फ्रूट का एक फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है। इहदा मेजर रीजन क्या है? पहला की है फ्रूट का जिहड़ा पीएच है वो हाईली एसिडिक है। दूसरा क्या है? ड्राइंग एंड हार्डनिंग ऑफ द जूस सैक। मतलब अगर आप सिट्रस फ्रूट्स की गल करिए, सपोज अगर आप ऑरेंज की गल कर रहे हैं तो ऑरेंज के अंदर थानू पता है कि की हुंदे है? जूस सैक्स हुंदे हैं, जिथों जूस निकल के आ रहे हैं, छोटे छोटे सैल्स हुंदे हैं, वो हार्ड हो जाते हैं, उन्होंने ड्राइंग हो जाती। थर्ड क्या है? फ्रूट क्रैकिंग, फ्रूट फट गया है उहदे करके, या ब्लैकनिंग ऑफ द पील, जिवें कि असीं किन्नू मैंडरिन ऑरेंजिस दे विच देखते हैं कि बाहरों जिहड़ा पील का कलर है नॉर्मली की हुंदा है? ऑरेंज येलोइश, बट उहदी ब्लैकनिंग हो गई है, उस रीजन के करके ग्रैनुलेशन हो रही है। क्या असीं सारे ऑप्शंस नूं रीड करांगे फिर देखांगे कि आंसर की हो सकता है इहदा। सो जिहड़ा साडा करैक्ट आंसर है वो की है? ड्राइंग एंड हार्डनिंग ऑफ द जूस सैक। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? ड्राइंग एंड हार्डनिंग ऑफ द जूस सैक, यानी कि मेजर प्रॉब्लम आएगी कि जूस का जिहड़ा कंटेंट है, जूस का जिहड़ा कंटेंट है वो भी रिड्यूस होएगा, प्लस जिहड़े साडे जूस दे सैक है, यानी कि अगर ऑरेंज के अंदर छोटे छोटे जो सैल्स है जिन्होंने आपां की कहने आ जूस दे जो सैक्स है उन्होंने विच डिस्टर्बेंस आ जाती है, वो काफ़ी ज़्यादा थिक हो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी दैट इज ड्राइंग एंड हार्डनिंग ऑफ द जूस सैक। हुण अगर असीं ग्रैनुलेशन की देखिए तो नॉर्मली अगर असीं मैंगो किन्नू मैंडरिन इन्हां दी गल करिए तो नॉर्मल केस दे विच की हुंदा है? कुछ एवें दा फ्रूट नज़र आ रहा है सानूं, जिहदे विच तुसीं देख सकते हो कि सैल्स दे विच प्रॉपर इंटैक्टनेस है, प्रॉपर टर्जिडिटी है, जूस सैक कंटेंट बिल्कुल प्रॉपर नज़र आ रहा है। लेकिन अगर असीं ग्रैनुलेशन स्टेजेस की गल करिए, सपोज आ साडी स्टेज 1 इत्थों शुरू हो रही है ग्रैनुलेशन, लास्ट तक आंदे आंदे साडा फ्रूट बिल्कुल ही खराब हो चुका है।
ਸੋ ਗ੍ਰੈਨੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਟੇजेस ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਨਿਊਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜੂਸ ਸੈਲਸ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਮੈਗਨੀਫਾਈਡ ਕਰਕੇ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਐਵੇਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਈਟਨਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? ਵਾਈਟਨਿੰਗ। ਵਾਈਟਨਿੰਗ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਥਿਕਨੈਸ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਫਰੂਟ ਦੇ ਜੂਸ ਸੈਲਸ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਥਿਕ ਟਰਜਿਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਟਨਿੰਗ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਲਾਸਟ ਤੱਕ ਆਂਦੇ ਆਂਦੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰੂਟ ਹੈ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਡੀਗ੍ਰੇਡ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਗ੍ਰੈਨੂਲੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਗ੍ਰੈਨੂਲੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਕਿੰਨੂ ਮੈਂਡਰਿਨ ਸਿਟਰਸ ਫਰੂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਡਿਸਆਰਡਰ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਮੇਜਰ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰੈਨੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰਡਨਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੂਸ ਸੈਲਸ ਦੀ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 5 ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਹਾਰਵੈਸਟ ਸਟੇਜ ਫॉर द ਬੈਸਟ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇਨ ਮੈਂਥਾ ਮਿੰਟ। ਸੋ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂਥਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂਥਾ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਿੰਟ। ਮਿੰਟ ਦਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਨੇਮ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂਥਾ ਆਰਵੈਂਸਿਸ। ਸੋ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮੈਂਥਾ ਆਰਵੈਂਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬੈਸਟ ਆਇਲ ਕੁਆਲਿਟੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਿੰਟ ਆਇਲ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਇਲ ਪਰਪਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹਦੀ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਕਿਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਆ ਗਿਆ अर्ਲੀ ਵੈਜੀਟੇਟਿਵ ਸਟੇਜ, ਫੁੱਲ ਸੀਡ ਸੈਟ ਸਟੇਜ, ਬਡ ਟੂ 50% ਆਫ ਦਾ ਫਲਾਵਰਿੰਗ ਸਟੇਜ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਓਨਲੀ ਜਦੋਂ ਲੀਫ ਵੀ ਫਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਨਸਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। पहली ऑप्शन की है अर्ली वेजिटेटिव स्टेज, क्या ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ऑयल कंटेंट हो सकता है? नहीं, क्योंकि वेजिटेटिव ग्रोथ हो रही है, प्लांट हजे ग्रो हो रहा है, सो दिस ऑप्शन इज एलिमिनेटेड। नेक्स्ट इज फुल सीड सेट स्टेज, ਜਦੋਂ प्रॉपर सीड्स भी बन चुके ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਡਰਾਈंग ਹੋ ਜਾਏਗੀ। सीड्स ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਣਦੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਕੰਟੈਂਟਸ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਡਰਾਈ ਅਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸੋ ਦਿਸ ਆਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਐਲੀਮੀਨੇਟਡ। ਓਨਲੀ ਆਫਟਰ ਦ ਲੀਫ ਫਾਲ, ਜਦੋਂ ਪੱਤੇ ਝੜਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ऑयल कित्थों आ रहा है, लीफ दे विचों आ रहा है। ऑप्शन च की दिता है कि पत्ते डेसिकेट कर गए, पत्ते ही फॉल कर गए, तो ऑयल कित्थों आएगा, दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। सो साडी करेक्ट क्या है, बड टू 50% ऑफ द फ्लावरिंग स्टेज। जदों फ्लावरिंग स्टेज आती है, जदों फ्लावर दी बड बनती है, बड बनन तो जदों की ऑप्शन आंसर की है साडा, जदों फ्लावर दी बड फॉर्मेशन हुंदी है, फ्लावर दी बड फॉर्मेशन होंदी है, उस तो बाद फ्लावरिंग जो 50% हो चुकी है, उस स्टेज के अंदर अंदर असी हारवैसटिंग करांगे तो सानू मैक्सिमम ऑयल कंटेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, सो इसी दे नाल साडे अज दे 5 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। नैक्सट असी तुहाडे लई होर भी इंटरस्टिंग टॉपिक्स दे रिलेटेड क्वेश्चंस नूं लैके आवांगे। जेकर तुसी चाहते हो कि असी एवें ही तुहाडे नाल इंटरस्टिंग टॉपिक्स इंटरस्टिंग क्वेश्चन आंसर्स दी सीरीज़ नूं डिस्कस करिए तो साडा बैच शुरू हो चुका है, उड़ान बैच। 1 दिसंबर तो यह बैच शुरू हो चुका है। इस बैच दे विच तुहानूं टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड हो रही है। ये टेस्ट सीरीज़ तुहानूं किन्ने दी पै रही है, सिर्फ और सिर्फ 999 रुपीज़ दी, जो कि एक ऑफर प्राइस है। सो टेस्ट सीरीज़ नूं तुसी जरूर एनरोल करना है। इहदे विच तुहानूं मल्टीपल चॉइस ऑफ क्वेश्चनस, मल्टीपल डाइवर्सिफाइड टॉपिक्स दे रिलेटेड MCQs मिल जाएंगे, जिहदे तुसी डेली प्रैक्टिस करनी है, उहदे नाल काफ़ी इंप्रूवमेंट आएगी तुहाडे विच। जेकर तुसी पूरी टेस्ट सीरीज़ नहीं लैनी, बैच दे विच एनरोल करना चाहते हो, बैच भी अवेलेबल है। बैच दे विच तुहानूं की मिल रहा है, बैच तुहानूं पएगा 4999 का। तुसी बैच भी एनरोल कर सकते हो। स्टडी मटीरियल, वीडियो लैक्चर्स प्लस टेस्ट सीरीज़ भी मिल रही है।